اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کتاب کلام پاک پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اعظم علیہ السلام سے عشق و محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ ہم لوگ لا علم میں کیا کہہ دیا کرتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کرتا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا اس اللہ سے ڈرو۔ لیکن یاد رکھو پروردگار عالم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ منع ہے۔ اگر کہنے والا اس نیت سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے تو یہ کفر ہے۔ پھر انسان کتنی ہی نمازیں پڑھا، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا یہ کسی کام کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ جملہ، یہ کلمہ بولنا کیا اوپر ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، انسان یہ بولنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم خدا کی عبادت بھی کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ارشاد فرماتے ہیں ہم اس پر عمل کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ سوال صحابہ کرام رسول اعظم علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ پیار محبت کا معاملہ دیکھو، عشق و محبت کا معاملہ دیکھو کہ صحابہ کرام نبی کے غلام، سوال تو نبی سے کریں لیکن جواب جو ہے وہ پروردگار خود ارشاد فرما رہا ہے۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ یاد رکھو انسان کوئی بھی ہو اپنے دل میں خدا کا خوف بسا کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہ ہو تو اس انسان اور جانور میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جانور اور انسان کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ انسان زندگی گزارے تو یہ سامنے رکھ کر کے گزارے، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بسا کر کے زندگی گزارے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں میرا پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم خدا کی عبادت بھی کیا کرتے ہیں، خدا کا راستہ آپ نے دکھایا، ہم اس پر چلا کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول وہ پروردگار جس کی ہم عبادت کیا کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا رب العالمین مانتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے رسول اعظم سے یہ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، رب نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے میرا حکم سنا دو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب جب آپ کے غلام آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے فرما دینا کہ وہ میں پروردگار اپنے ان بندوں سے قریب ہوں۔ اب قریب کتنا ہے؟ قریب بھی کتنا ہے؟ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں یہ تو سن لیا تم نے کہ تمہارا پروردگار تمہارے قریب ہے۔ اب قریب کتنا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز انسان کے اتنے قریب نہیں ہو سکتی۔ جس رگ کے اندر انسان کی جان ہوا کرتی ہے وہ پروردگار اس شہ رگ سے بھی زیادہ اپنے بندے کے قریب ہے۔ اب
अब बताओ वो बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? आप जो कुछ करोगे वो देखेगा कि नहीं देखेगा? आप जो कुछ भी करते हो वो देखता है। दिल के अंदर जो वसवसे, जो ख्यालात तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा होते हैं, वो परवरदिगार उन पर मुत्तला होता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐ महबूब आप उनसे फरमा देना कि मैं उनसे करीब तो हूँ, लेकिन याद रखो उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब वो मेरे बंदे मुझको पुकारते हैं तो मैं उनके सवाल का जवाब भी दिया करता हूँ, उनको जवाब देता हूँ, उनको ऐसा जवाब देता हूँ कि इंसान आँख से तो नहीं देखा करता, कान से तो नहीं सुना करता, लेकिन जिस इंसान के अंदर एहसास का मादा हुआ करता है वो उसको महसूस कर लिया करता है। लेकिन हमने देखा हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद में खुदा की बारगाह में दुआ किया करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। इंसान 5 वक्त की नमाज में आए, नमाज़ पढ़ने के बाद में दुआ करे, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। अब सवाल पैदा होता है, अगर वो परवरदिगार हमारे इतना करीब है तो हमारी सुनता क्यों नहीं है? हमारी सुनता क्यों नहीं है? याद रखो जो जिसके अंदर इंसानियत हुआ करती है वो परवरदिगार अपने उसी बंदे की सुना करता है, वो जो इंसान हुआ करता है उसकी नहीं सुना करता। क्योंकि इंसान और जानवर के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं। ऐसे लोग नबी के ज़माने में भी थे, कुरान भी पढ़ते थे, नबी की इक्तिदा में नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन याद रखो दिल में नबी की दुश्मनी उनके थी। तो नबी ने क्या किया आखिर में? नबी समझाते रहे, रसूल आज़म समझाते रहे, लेकिन बिल आखिर वो लोग नहीं माने, दिल से अपनी गंदगी को उन्होंने नहीं निकाला। तो मस्जिद नबवी शरीफ से प्यारे मुस्तफ़ा ने एक एक का नाम लेकर के उनको अपनी मस्जिद से भगा दिया, और ऐसा भगाया है कि आज तक वो भागे फिर रहे हैं, वो क़यामत तक उनकी नस्लें दौड़ती रहेंगी, क्योंकि जिसको नबी अपने दर से भगा दे दुनिया का कोई भी माई का लाल उसको ठिकाना नहीं दे। समझ रहे हैं आप बात को? भगाया कौन जाता है? जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होती। भगाया वही जाता है जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होती। अल्लाह वालों की बारगाह से भी वही दूर होता है कि जिसके दिल में दुश्मनी होती है। लेकिन हम नमाज तो मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ते रहें, दिल में दुश्मनी हो इमाम की तो वो नमाज नहीं है, बल्कि ये उन्हीं मुनाफिकों की तरह ये इंसान होता है कि जिस मुनाफिकों को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी से जुमे के दिन नमाज में एक एक का नाम लेकर के मस्जिद से भगा दिया है। जिसका दिल और ज़ुबान एक हो, परवरदिगार आलम उसी की सुना करता है। और जिसके दिल में खुदा का खौफ ना हो वो भगाया जाता है। अगर खुदा की बारगाह से ना भगाया जाए तो वो कौम के दरमियान में ज़लील और रुस्वा होता रहता है। अब आओ अल्लाह के नबी की बारगाह में, जिनका नाम हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है, आपके ज़माने में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया था। अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के नबी हैं। आपकी बारगाह में लोग आए, आने के बाद में अर्ज़ करने लगे, ए मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि आप देख रहे हैं जानवर परेशान हैं, आसमान ने शिद्दत के आग के शोले बरसाना शुरू कर दिए हैं, दूध पीते बच्चे हैं कि इनकी ज़ुबानें सूख रही हैं, दुनिया की हर मखलूक जो है परेशान है। ए मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, क्योंकि नबी जो होता है वो मुस्तजाबुद दावत हुआ करता है। अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ किया करता है अल्लाह का नबी, अल्लाह अपने नबी की दुआ को कबूल किया करता है। ए मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने 40,000 लोगों के मजमे को लिया और बयाबान जंगल में
अपनी बस्ती से निकलते हैं नमाज अदा करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए, बारिश की दुआ करने के लिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कौम से अब 40,000 लोगों के मजमे को लेते हैं, अपनी बस्ती से निकल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो गर्मी का क्या आलम था। आसमान से शिद्दत के आग के शोले बरस रहे थे, जमीन का सब्जा खुश हो चुका था, जानवर परेशान थे, दूध पीते बच्चों की जुबान सूख करके काटा हो चुकी थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने 40,000 लोगों के मजमे को लिया, बयाबान जंगल में निकल गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे कि परवरदिगार आलम तू देख रहा है, आसमान शिद्दत के आग के शोले बरसा रहा है, दूध पीते बच्चों की जुबान सूख करके काटा हो चुकी है, जानवर परेशान है। ए परवरदिगार आलम, इसी बेजुबान मखलूक के सदक़े में मुझे मूसा कलीमुल्लाह की दुआ को कबूल कर ले। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मुसलमानों, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती है। दूसरी मर्तबा दुआ करते हैं, अभी क्या बारिश के कोई भी आसार निशानी जाहिर नहीं होती है, बारिश की कोई भी निशानी जाहिर नहीं होती है मुसलमानों। उसके बाद में हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार तूने तो नबियों को मुस्तजाब दावत बनाया, लेकिन अपने नबी मूसा कलीमुल्लाह की दुआ तू कबूल क्यों नहीं कर रहा है। गैब से आवाज़ आती है, ये मूसा कलीमुल्लाह सुनो, 40,000 का जो मजमा तुम लिए हो, तुम्हारे दरमियान में एक गुनाहगार है, एक सियाकार है, एक बदकार है, उस इंसान को अपने मजमे से निकाल दो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सोचने का मकाम है, एक गुनाहगार इंसान की वजह से अल्लाह अपने नबी की दुआ को कबूल नहीं कर रहा, सोचने का मकाम है। अब हम अपने ज़मीर को देखें, अपने दिल का जायजा लें, क्या हम सब पाको साफ हैं? कौन सा गुनाह ऐसा है कि जो हम नहीं करते, हत्ता कि वो गुनाह जो शैतान के दादा तक ने नहीं किया वो हम कर रहे हैं हाथ को। वो गुनाह जिना शैतान ने किया हरगिज़ नहीं किया, लेकिन इंसान कर रहा है। बदकारी शैतान ने नहीं की, लेकिन इंसान कर रहा है। चुगलखोरी शैतान ने नहीं की, लेकिन इंसान कर रहा है। गर्ज ये कि वो कौन सा गुनाह है जो इंसान नहीं कर रहा है। अब बताओ, अल्लाह अपने बंदों की कैसे सुने, कैसे सुने? एक गुनाहगार इंसान की वजह से वो परवरदिगार अपने नबी की नहीं सुन रहा है, तो हमारी कैसे सुनेगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अपने कौम के मजमे में ऐलान किया, जो तुम में गुनाहगार है वो हमारे मजमे से निकल जाए। उसी एक इंसान की वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, वो गुनाहगार था, सियाकार था, बदकार था, दिल ही दिल में तौबा करने लगा, तौबा किया, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया कि परवरदिगार, जिस वक्त में मैंने ये गुनाह किया था दुनिया के किसी इंसान ने नहीं देखा था। ए परवरदिगार, जैसे कि तूने मेरे गुनाह की पर्दापोशी की है, ए परवरदिगार, अगर मैं निकलता हूँ कौम में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ए परवरदिगार, अपने इसी नबी के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैलाया, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया, आसमान से बारान रहमत नाजिल हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला, तूने तो वादा किया था कि तुम्हारी दुआ उस वक्त में कबूल होगी जबकि एक इंसान अपने मजमे से निकाल दोगे, लेकिन निकला तो कोई भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह से निदा आती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, जिस इंसान की वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, अब उसी इंसान की वजह से मुझ परवरदिगार ने बारिश का नुज़ूल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अब अपने गुनाह से तौबा कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, याद रखो मुसलमानों, परवरदिगार हर एक की सुनता है, लेकिन सुनाने के लिए जो है ना ज़ुबान और दिल क्या है, पाक और साफ होना चाहिए, खुदा का खौफ दिल में होना चाहिए। जब एक गुनाहगार इंसान की वजह से अल्लाह के नबी की दुआ कबूल नहीं हो सकती है, तो हमारी कैसे होगी।
इसलिए जो काम भी किया करो अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसा करके किया करो। कोई दुनिया के इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन तुम्हारा परवरदिगार तो उसको देख रहा है।